Today, we are going to start your new topic of your chapter number 15, Properties of Triangles. In this, we are going to discuss about Pythagoras theorem. This is the last exercise of your chapter 15D. So first of all, we have to know about Pythagoras theorem. So Pythagoras is the name of the mathematician. He gave one theorem. It is for the right angle triangle. When a right angle triangle is given to you and it forms three sides. This is known as base, this one is the perpendicular, and this side is known as hypotenuse. So three sides are there: base, perpendicular, and hypotenuse. So Pythagoras theorem is that the square of the largest side. So always in the right angle triangle, the hypotenuse is the longest side, the largest side. The square of the largest side is equals to the sum of square of other two sides. Means when first of all you have to square of both the sides, both the remaining sides, and add them. So this is the Pythagoras theorem. Pythagoras was the mathematician. He gave this theorem. All right. क्या है? In a right angle triangle, the square of the hypotenuse is equals to the sum of square of its other two sides or remaining side. So this is a Pythagoras theorem. Suppose we are having this is 3 centimeters and this one is a 4 centimeter. If I am going to find the hypotenuse, so I am going to put the values in this 4 square and perpendicular 3. If I am going to solve 4 into 4 16 plus 3 3 9. If I am going to add, this one is a 25, means h square equals to 25. तो h स्क्वायर को हम यहाँ भेजेंगे तो इट विल बिकम स्क्वायर रूट. एंड वी नो वेरी वेल कि व्हेन वी आर गोइंग टू फैक्टर ऑफ दिस 25, तो इट विल 5 into 5. इट मीन्स h इक्वल्स टू 5. तो दिस इज द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूस. हमें मान लो इसके अलावा कोई अदर टू साइड्स फाइंड आउट करनी है तो उसको हम इस यहाँ शिफ्ट कर लेंगे, लाइक समथिंग लाइक दिस. सपोज मुझे बेस फाइंड आउट करना है तो ये फॉर्मूला लगा दूंगा मैं. ठीक है. इफ आई एम गोइंग टू फाइंड परपेंडिकुलर तो आई एम गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला. तो दीज आर द फॉर्मूलाज विच आर यूज इन द एक्सरसाइज एंड दिस फॉर्मूला इज गिवन बाय द पाइथागोरस. दिस इज फॉर फाइंड द थर्ड साइड इन अ राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है. So now come to the exercise. Question number 1. Find the length of the hypotenuse of a right triangle. We have to find what? The length of the hypotenuse if the other two sides are given to you. Question number 1. First I am going to draw the figure. ठीक है. Right angle triangle is given to you. We have to find this hypotenuse assumed as x, and this one is a 9 centimeter and this one is a 12 सेंटीमीटर. ठीक है. तो वी हैव टू फाइंड द हाइपोटेन्यूस. हमें हाइपोटेन्यूस फाइंड आउट करनी है. द गिवन वैल्यूज आर देयर. परपेंडिकुलर इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर्स एंड द बेस इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर्स एंड हाइपोटेन्यूस इक्वल्स टू x. तो बाय पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर. ठीक है. नाउ आई एम गोइंग टू पुट द वैल्यूज हियर. b मीन्स 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर. 9 9 81 प्लस 12 12 144. तो h स्क्वायर इक्वल्स टू ऐड देम, ऐड कर लेते हैं. 5 2 2 225. तो h इक्वल्स टू अंडर रूट 225. एंड वी नो डेट, अगर आपको नहीं आ रहा है करना कि ये कैसे सॉल्व करना है कि h की वैल्यू क्या आएगी, तो यू जस्ट फाइंड द फैक्टर्स ऑफ दिस.
25 के मैं फैक्टर्स निकाल लूँगा 225 के, 5 से कर लेते हैं, 5 4 ज़ा 20, 2 बचा, 5 5 ज़ा 25, अगेन 5 से, 5 9 ज़ा, नाउ 3 से, 3 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा। तो दीज आर द फैक्टर्स 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। स्क्वायर पता है आपको, स्क्वायर में से हम कॉमन वैल्यूज़ बाहर निकाल लेते हैं। तो अब पेयरिंग होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर पेयर नहीं बनेगा तो वो अंदर ही रहेगा, जिसका पेयर होगा उसमें से एक बाहर आ जाता है। तो इसका पेयर बन गया और इसका पेयर बन गया, तो एक 3 बाहर आ जाएगा और एक 5 बाहर आ जाएगा। तो इट मीन्स हाइपरटेनियस इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर्स। तो बाय दिस वी कैन इजिली फाइंड द वैल्यू ऑफ hypertenuse. Now come to the next one. In the next question, the hypotenuse is given to you and one side is given. We have to find other side. तो इसमें हमें सिंपल फॉर्मूला जो बताया था मैंने वही अप्लाई कर लेंगे कि वी हैव टू फाइंड द रिमेनिंग साइड, थर्ड साइड। इस बार हमें क्या गिवन था इसमें, हाइपरटेन्यूस इज गिवन। ठीक है, नाउ इन द क्वेश्चन नंबर 2 आई एम गोइंग टू ड्रॉ द फिगर। ठीक है, आप रफ फिगर ड्रॉ कर लेंगे इसमें लाइक दिस, ए बी एंड सी। हाइपोटेन्यूस इज गिवन टू यू, दैट इज 26 एंड वन साइड, सपोज दिस वन साइड इज द 10 सेंटीमीटर्स एंड दिस वन हैज टू बी एक्स। तो हाइपोटेन्यूस इक्वल्स टू 26 सेंटीमीटर्स, परपेंडिकुलर इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर्स एंड base equals to x centimeters. So again by Pythagoras theorem, the Pythagoras theorem said that base square equals to hypotenuse square minus perpendicular square. जब भी हम बेस फाइंड आउट करेंगे या परपेंडिकुलर फाइंड आउट करेंगे तो हाइपोटेन्यूस से ही माइनस करना है, बिकॉज दिस इज अ लॉन्गेस्ट साइड। तो 26 के स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ दिस 676 minus 100, तो इट विल 576। तो b स्क्वायर इक्वल्स टू दिस, तो देयरफॉर b इक्वल्स टू अंडर रूट 576। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन यू हैव टू डू द फैक्टर्स ऑफ दिस, इसके फैक्टर्स करेंगे। तो बेस इक्वल्स टू अंडर रूट, व्हेन आई एम गोइंग टू डू द फैक्टर्स ऑफ दिस, तो जो हमारे इसके फैक्टर्स आएंगे वो कुछ इस तरीके से आएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने हो गए, 6 हो गए, इंटू 3 इंटू 3। तो दीज आर द फैक्टर्स। अगर मैं इसको करता हूँ उस तरीके से सॉल्व, ठीक है, बाय एलसीएम मेथड, तो इतने ये फैक्टर्स आ जाएंगे। तो आपको पता है इसमें पेयरिंग कर लेते हैं हम। देखिए पेयरिंग करता हूँ मैं, ये हो गया पेयर, ये भी पेयर, ये भी पेयर। पेयर में से एक एक बाहर आ जाता है, तो बेस इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 8 3 जा 24 सेंटीमीटर्स। तो दिस इज अ वैल्यू ऑफ द बेस। तो ये बेस की वैल्यू आ जाएगी। तो यू कैन फाइंड बाय दिस मैथड, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन, द वैल्यूज आर गिवन टू यू इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल। आपको डेसिमल फॉर्म में गिवन है, बट करना इसको इसी तरीके से सॉल्व है। ठीक है, सेम वही चीज़ है। Hypotenuse is given to you and one side is given. We have to find the third side. This question you have to do it yourself. Now come to the question number 4. The question number 4 is that two legs of a right triangle are equal and the hypotenuse is 50. ठीक है, two legs of a right triangle are equal and the square of its hypotenuse, मतलब वी हैव गिवन द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूस इज 50, फाइंड ईच ऑफ द लेग्स, मतलब वी हैव टू फाइंड ऑल द साइड्स। तो इसको रब कर देता हूँ मैं, इसी में कर लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, थोड़ा अलग क्वेश्चन था इसलिए मैं करा रहा हूँ आपको। जस्ट लुक हियर, क्वेश्चन नंबर 4, ही सेड कि वी हैव गिवन दीज टू साइड्स आर इक्वल, दीज आर द लेग्स ऑफ द राइट ट्राइंगल। ठीक है, तो एंगल फॉर्म हो रहा है उसके दो, दीज टू आर इक्वल। तो अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू एज्यूम परपेंडिकुलर इक्वल्स टू एक्स सेंटीमीटर्स एंड द बेस इज ऑल्सो एक्स सेंटीमीटर्स, की बोथ आर द इक्वल वैल्यूज। ठीक है बेटा, नाउ
वी हैव गिवन कि एच स्क्वायर इक्वल्स टू 50, मतलब एच नहीं गिवन है, हमें एच स्क्वायर गिवन है, दैट इज 50. तो वी हैव टू फाइंड ईच इट्स लेग. अब हमें 50 लिखा हुआ है खाली, स्क्वायर ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज. 50 सेंटीमीटर नहीं है, मीटर नहीं है, हमें वैल्यू नहीं पता है, तो हम इसको आगे लिख देंगे इतना यूनिट. ठीक है, कोई भी यूनिट हो सकती है वो, तो उसको आंसर हम यूनिट की फॉर्म में देते हैं. ठीक है, जब हमें गिवन नहीं होती है कोई चीज़, इसको ध्यान रखना है आपको. सो नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर. एच मीन्स 50 इक्वल्स टू बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इट विल बिकम 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 50. यहाँ भेज लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 50 अपॉन 2, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25, देन एक्स इक्वल्स टू 5. ठीक है, द वैल्यू ऑफ एक्स, यूनिट इज नॉट गिवन टू अस, तो वी कैन राइट 5 यूनिट. तो देयरफॉर ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू 5 यूनिट. ठीक है, थर्ड साइड हमें पता ही है, अगर इसका रूट कर दूंगा तो थर्ड साइड आ जाएगी. तो दिस इज अ वैल्यू ऑफ अदर टू साइड्स. अगर सेंटीमीटर के फॉर्म में होता तो यू कैन राइट इतना सेंटीमीटर्स. ठीक है बेटा, दिस वन इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट देखिए, द साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर 15, 36 एंड 39. शो डेट इट इज एन राइट एंगल ट्राइंगल. देखो बेटा, आपको करना क्या है, 3 साइड इज गिवन टू यू. जो लॉन्गेस्ट साइड है उसको एज अ हाइपोटेनस मान लेंगे, और अदर 2 साइड्स एक बेस और एक परपेंडिकुलर. अगर ये पाइथागोरस के फॉर्मूले में सेटिस्फाई होता है, मीन्स LHS की वैल्यू RHS के इक्वल आ जाती है ऐड करने के बाद, तो ये सेटिस्फाई करेगा, और अदरवाइज नहीं आती है तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा. तो दिस क्वेश्चन यू हैव टू डू इट योरसेल्फ. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6. In a right triangle ABC, the length of its legs are given 6 and 4.5. Find its hypotenuse. बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, that you have to solve it yourself. Now come to the next one, question number 7. The length of the sides of triangle are given below. Right? Which of the following are right angled? आपको बताना है इसमें से कौन से right angle बनेंगे. एक इसका मैं पार्ट कर दे रहा हूँ, वैसे ये क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही होना है. ठीक है, मैं एक पार्ट इसका करवा दे रहा हूं आपको. 7th पार्ट 1. 3 साइड्स आर गिवन टू यू. ए इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर्स, बी इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर्स एंड सी इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर्स. तो हम एज्यूम कर लेंगे द लॉन्गेस्ट साइड एज हाइपोटेन्यूज. फर्स्ट एज्यूम एच इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर्स. ठीक है, हाईएस्ट जो लॉन्गेस्ट साइड होती है उसको हाइपोटेन्यूज मान लेते हैं. नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम, अगर ये थ्योरम को सेटिस्फाई कर देंगे, इट मीन्स क्या हो जाएगा, दीज आर द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल. और सेटिस्फाई नहीं करेगा तो ये इसको वेरीफाई नहीं कर रहा है. ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 होना है आपका. स्क्वायर इसका होता है 625 इक्वल्स टू 400 प्लस 225. तो 625 इक्वल्स टू एड देम, इट इज ऑल्सो 625, मीन्स LHS इक्वल्स टू RHS. ये दोनों ही चीजें इक्वल आ गई. व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये हो गया, यस गिवन साइड्स आर ऑफ राइट ट्राइंगल. ठीक है, राइट ट्राइंगल की साइड्स फॉर्म हो रही हैं. अगर ये इक्वल नहीं आता तो हम नो लिख देते कि इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं. ठीक है बेटा, सिमिलरली यू हैव टू डू द क्वेश्चन नंबर 7. The remaining part you have to solve it yourself. Now come to the question number 8. In a triangle ABC, angle B equals to 35, angle C equals to 55. Write which of the following is true. आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा. ठीक है, ये आपको वर्बली ही मैं समझा देता हूँ, थोड़ा समझ लो. ठीक है, कैसे करना है. 2 एंगल्स आर गिवन टू अस. एक ट्राइंगल हमें दिया हुआ है. अब जो 90 दिया है उसको मैं अलग ले रहा हूं. ठीक है, बी हमें दिया है, तो मतलब ए हमें 90 दिया होगा. इट मीन्स क्योंकि बी हमारे पास 35 है, इसको मैं बी मान लेता हूं, और इसको सी.
दिस वन इज अ 35 एंड दिस वन इज अ 55. ठीक है, अब जो रिमेनिंग ऐड करो इन दोनों को. वी नोटेड के सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज 180 डिग्री. ये 55 है और एक 35 है. ऐड करिए, ये हो गया 90. मीन्स बचा हुआ 90 होगा, मतलब ए पे 90 फॉर्म हो रहा है. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस जिस पे 90 बनता है उसके सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूस बोलते हैं. तो फॉर्मूला होगा हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. हाइपोटेन्यूस का नाम क्या है बेटा? बी सी. बेस क्या है? ए सी प्लस ए बी. तो अगर ये वाली कंडीशन इन तीनों पॉइंट्स में से किसी एक में आ रही है तो वही स्टेटमेंट सही है. तो मीन्स क्या? बी सी स्क्वायर. ठीक है, ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं. इसको यहाँ लिख सकते हैं और इसको यहाँ लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, वो तो एक ही बात है. तो द थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट. बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर. तो थर्ड वाला स्टेटमेंट सही है और बाकी के दो पार्ट्स जो लिखे हुए हैं फर्स्ट एंड सेकंड वो रॉन्ग कहलाएंगे. ठीक है बेटा. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. इन द क्वेश्चन नंबर 9, a 15-meter long ladder is placed against the wall to reach the window of 12 meters. मीन्स एक विंडो को हमने लगाया है, विंडो के पास हमने एक लैडर लगाई है, मतलब सीढ़ी. ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9. ये विंडो है यहाँ से यहाँ तक कितने मीटर है बेटा? दिस इज अ 12 मीटर्स. ठीक है, हमने इस पर एक लैडर लगाई लाइक दिस. 15 मीटर लॉन्ग लेडर, ये 15 मीटर की सीढ़ी बनी हुई है, ये सीढ़ी लगी हुई है. ठीक है बेटा, लेडर है ये 15 मीटर. फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द वॉल. लेडर के फुट से लेके वॉल तक की डिस्टेंस क्या होगी? इसको x मान लेते हैं, मतलब हमें बेस फाइंड आउट करना है सिंपली ये हमें. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू एज्यूम बेस इक्वल्स टू x. तो बाय पाइथागोरस थ्योरम वी नोटेड हाउ टू सॉल्व दिस वन. वेरी सिंपल. हाइपोटेन्यूस का हमें बेस निकालना, तो बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर प्लस माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर. तो वी हैव टू फाइंड द बेस. तो इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस 15 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर. द स्क्वायर ऑफ 15 इज 225. द स्क्वायर ऑफ 12 144. सब्ट्रैक्ट देम, इनको माइनस कर लेंगे. 1 एंड 5 minus 4 1 and 12 minus 4 8 81. तो b स्क्वायर इक्वल्स टू 81 एंड b इक्वल्स टू अंडर रूट 81. ठीक है, अब वी नो वेरी वेल कि 81 इज द स्क्वायर ऑफ विच नंबर? यस, इट इज द स्क्वायर ऑफ 9. तो देयरफॉर द डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द लेडर टू द वॉल इज 9 मीटर्स. ठीक है, मीटर में लिखेंगे क्योंकि यूनिट्स आर गिवन इन द मीटर्स. ठीक है बेटा, तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9. ठीक है, रिमेनिंग क्वेश्चंस आर सेम. जस्ट डू इट योरसेल्फ. इफ यू आर डूइंग फेसिंग एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम और क्वायरीज, जस्ट यू कैन डिस्कस. ठीक है, बाकी क्वेश्चंस आप करेंगे घर से. कोई प्रॉब्लम होती है देन वी कैन डिस्कस अगेन इन द लाइव क्लास. थैंक यू.